Hello, good morning students. How are you all? I hope all of you are good. So once again we will start our topic data handling, and in the data handling we were doing exercise 5.3. So beta in exercise 5.3 already what we are doing in exercise 5.3, what is how will you find out the outcomes and probability of any event. Okay, so already I have explained about the outcomes. Outcomes means what is the chance of happening any event or coming any event, and probability how will you find out. First of all you will find out the number of possible outcomes, and after that you will divide it by total number of outcomes. So what will be the probability? Probability means number of possible outcomes divided by total number of outcomes. So we have I have explained already question up till question number 3rd. Today we will start question number 4. So what is given in question number 4? It is given numbers 1 to 10 are written on the slip on the slip which is in the box. One slip is chosen from the box. So find the probability of getting a number 6, getting a number less than 6, getting a number greater than 6, and getting one digit number. Clear? So here first of all what is the numbers? Okay, what is the total cases? So here it is written number 1 to 10 are written on slips. एक स्लिप है एक बॉक्स में, सॉरी बॉक्स में बहुत सी स्लिप्स हैं. उन स्लिप्स के ऊपर क्या लिखे हुए हैं? नंबर्स लिखे हुए हैं. कौन से नंबर्स लिखे हैं? किसी स्लिप के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है, किसी के ऊपर 2 लिखा है, किसी के ऊपर 3 लिखा है, 4 5 6 7 8 9 10. सो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारी स्लिप्स रखी हैं, स्लिप्स बना के, और उनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो 1 to 10 नंबरिंग दी गई है स्लिप्स के ऊपर. ठीक है, उनमें से 1 स्लिप निकाली गई है बॉक्स में से. सो उसमें से आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6. सो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. नेक्स्ट वन गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. लेस देन 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. नेक्स्ट वन गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. ग्रेटर देन 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. एंड नेक्स्ट वन इज गेटिंग वन डिजिट नंबर. ओके, सो वन डिजिट मतलब बेटा फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग द नंबर 1 to 10, so 1 to 10 means 1 to 9, like that 1 2 3 4 5 6 7 8 9. these numbers are one digit number. and if you are going to the number 10, so 10 में कितने डिजिट है? दो नंबर है, 1 और 0. तो 10 तो 2 डिजिट नंबर है, और 1 to 9 कितने डिजिट है? ओनली सिंगल डिजिट नंबर. सो ये नंबर्स ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 9. ओके, ये सारे कौन से कितनी डिजिट के नंबर होंगे? 1 डिजिट के. और जब आप 9 से ऊपर जाओगे 10 11 12 13 14, ये सारे नंबर्स कौन से होंगे? 2 डिजिट के नंबर. सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Okay, so first what is given? Getting a number 6. Okay, find the probability of getting a number 6 from total how many numbers are given? 1 to 10. Okay, 1 to 10 total numbers are given on the slip, and one slip is chosen from the box. So find the probability of getting a number 6. 6 आने की क्या probability होगी? Okay, so बेटा सबसे पहले getting a number 6. 6 आने की क्या probability हो सकती है? For example, total first you will find out the number of possible outcomes and total number of outcomes. So you will write number of possible outcomes, number of possible outcomes. So possible outcomes क्या होंगे? कितनी क्या probability हो सकती है 6 आने की? टोटल कितने नंबर है? 1 to 10. तो 6 हमने एक स्लिप उठाई और स्लिप में 6 आ जाए, उसकी क्या probability हो सकती है? 1 time. Okay, so you will write 1 and total number of cases. How many total are given? So total number of outcomes are how many total numbers are given? 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So total are given 10. So what will be the probability? So probability will be equal to number of possible outcomes divided by total number of outcomes. This is the formula to find out the probability. So you will write number of possible outcomes divided by total number of outcomes. So what will be your answer? So answer will be 1 by 10. Clear? So in the first question, exercise 5.3, question number 4, first part it is given. You have to find out the probability of getting a number 6. 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 6 बेटा जब आप कोई भी एक बॉक्स है, बॉक्स में 10 स्लिप्स रखी गई है, उन 10 स्लिप्स में से कोई भी एक स्लिप निकाल रहे हो, तो आपको ये बताना है कि उसमें उन स्लिप में से 6 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. तो 1 टाइम ही होगी जब आपको एक बार ही उठानी है स्लिप. तो एक बार स्लिप उठाई और आपने खोल के देखा उसको स्लिप में क्या कौन सा नंबर है, तो हो सकता है 6 हो जाए, तो वो 1 टाइम ही होगा ना. ऐसे थोड़ी ना होगा कि हर
बार स्लिप उठाओगे, क्योंकि आपको इसमें क्या बोला है, वन स्लिप इज चूजन वन टाइम। ओके, एक बार में आपको एक ही स्लिप बिना देखे निकालनी है। ठीक है, आपने बिना देखे स्लिप निकाली बॉक्स में से और उसको ओपन करके देखा क्या नंबर है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हो सकता है कि आपने पहली बार ही ओपन किया हो, पहली बार ही स्लिप निकाली और उसी में क्या आ गया आपके पास 6 नंबर आ गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वन ओनली वन टाइम। ओके, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितनी स्लिप्स है, टोटल नंबर कितने हैं स्लिप्स के ऊपर 1 to 10, सो टोटल नंबर कितने होंगे 10 एंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/10। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या कह रहे हैं कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, सो लेस देन 6 कौन से नंबर है बेटा, लेस देन 6 में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सो पॉसिबल आउटकम्स लेस देन 6, सो लेस देन 6 में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, तो टोटल कितने हो गए 5। ओके, सो लेस देन नंबर लेस देन 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल 5 होगी, क्योंकि हो सकता है लेस देन 6 में एक वन टाइम क्या आए 1 आए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, 4 आ जाए, नेक्स्ट 5 आ जाए, तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 5। ओके, नेक्स्ट वन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो टोटल तो आपके वही रहेंगे जितने हैं, कितने थे सभी स्लिप्स के ऊपर 1 to 10 टोटल नंबर लिखे थे। ठीक है, सो टोटल विल बी 10 एंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी will be equal to number of possible outcomes divided by total number of outcomes, so 5/10 and you can cancel out, so it will be 1/2. Clear? So like that you have to find out the questions. For finding the probability you have to find out the number of possible outcomes also and number of total outcomes. ठीक है, दोनों आउटकम्स निकालने पड़ेंगे तभी आपको क्या मिलेगा आंसर, बिकॉज प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यू विल डिवाइड। ओके, what will you do, you will divide number of possible outcomes divide by total number of outcomes. So second part beta, what is given, you have to find out the find the probability getting a number less than 6. so less than 6 में कौन कौन से नंबर आते हैं, लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटे नंबर, 6 से छोटे कौन से हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों नंबर क्या है 6 से छोटे हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5, और टोटल कितने हो गए ये 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने गिवन है 10। अगर ये दिख नहीं रहा है तो बेटा देखो प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपको सिंपल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आई एम राइटिंग हियर आल्सो, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 5/10, so 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, so answer will be 1/2. Second part, okay, total number of outcomes are 10, number of possible outcome is 5, so probability will be 5/10, so equal to 1/2. Clear? Now next third part, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। ओके, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, सो ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़े 1 to 10 में कौन कौन से नंबर होंगे, सो यू विल राइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सो ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 बेटा टोटल आपके पास 1 to 10 नंबर्स है, ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े कौन कौन से हैं उनमें 7 8 9 एंड 10, ये चारों नंबर होंगे 6 से बड़े, क्योंकि आपके पास टोटल कितने नंबर है 10 ही नंबर है 1 to 10, और 1 to 10 में से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, द नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े कौन कौन से नंबर है, सो 6 से बड़े कौन से होंगे 7 8 9 10, सो टोटल कितने हो गए 4 नंबर, एंड टोटल नंबर कितने गिवन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने हैं, टोटल वही है आपके पास 1 to 10, सो टोटल गिवन आर 10, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 4 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो 4/10, you can cancel out by 2, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, so you can write in the simplest form also 4/10 when you will cancel out by 2, so 2 2s are 4 and 2 5s are 10, and next one fourth last part, it is given find the probability of getting a one digit number, so digit बेटा digit कौन सी होती है, ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब डिजिट है, और अगर आप 9 से ऊपर जाओगे 10, तो 10 में कितने डिजिट हो गए 2 डिजिट 1 और 0, 11 में कौन कौन सी डिजिट है 1 and 1, 12 में 1 और 2, 13 में 1 और 3, ओके, तो ये सब क्या है 1 to 9 ये सब डिजिट होती है सिंगल डिजिट। ओके, सो आपके पास नाउ यू हैव टू फाइंड आउट गेटिंग वन डिजिट नंबर, तो वन डिजिट कौन कौन सी हो जाएगी, सो यू विल राइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे सिंगल डिजिट के लिए
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जब आप 10 पे जाओगे तो 10 2 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 1 डिजिट नंबर की। सो 1 to 9 जो नंबर है वो आपके सारे 1 डिजिट नंबर है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 9। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो ही कितने हैं बेटा? टोटल 10 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? 9/10। क्लियर? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 9/10। क्लियर? So this is very simple question. Simply what is given in this question beta, numbers 1 to 10 are written on the slip in a box. Okay, एक बॉक्स में कुछ स्लिप्स हैं, उन पे 1 to 10 नंबर लिखे हुए हैं। उनमें से आपको बॉक्स में से आपको एक स्लिप निकालनी है। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट सीइंग इन द फ्रॉम द स्लिप। ओके, ऑन द स्लिप। सो बिना स्लिप को देखे तो आपको क्या करना है? एक स्लिप निकालनी है बॉक्स में से, एंड उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एंड लास्ट गेटिंग 1 डिजिट नंबर। सो 1 डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सो ये आपको फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द पार्ट्स। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5, what is given in question number 5? If you have a spinning wheel, 3 green sectors. If you have a spinning, if you have a spinning wheel, okay, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, with 3 green sectors, with 3 green sectors, 1 blue sector, 1 blue sector and 1 red sector, 1 red sector. So what is the probability of getting a green sector? What is a probability? What is the probability? What is the probability of getting a green sector? Getting a green sector. And what is the probability of getting a non-blue sector? Okay. What is the probability of getting non-blue sector? नॉन ब्लू मतलब बेटा, नॉन ब्लू का मतलब है कि ब्लू ना होने की। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? इफ यू हैव स्पिनिंग अ व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, ब्लू सेक्टर्स एंड 1 रेड सेक्टर, सो व्हाट इज द क्या है आपके पास? यदि आपके पास एक व्हील, स्पिनिंग व्हील मतलब घुमाने वाला पहिया है, जिसमें क्या है? 3 तो ग्रीन सेक्टर्स है, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है। सो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। सो हियर दे आर आस्किंग 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? एंड सेकंड क्वेश्चन, दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। सो नॉन ब्लू मतलब ब्लू सेक्टर ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर, तो दोनों 1 by 1 यू विल फाइंड आउट। ओके बेटा, both of the questions, both the answers you will find out 1 by 1. So solution you will write first, if you have spinning a wheel with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector. So first you will find out total number of outcomes. So total number of outcomes. So बेटा टोटल कितने आउटकम्स है? टोटल आउटकम्स का मतलब टोटल कितने सेक्टर्स गिवन है? सो 3 तो क्या है? ग्रीन सेक्टर है, प्लस 1 क्या है? ब्लू सेक्टर है, और प्लस 1 रेड सेक्टर। सो 3 + 1 4, 4 + 1 टोटल विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 5, जिनमें से 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 रेड सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 5 एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, number of possible outcomes
of getting a green sector. Okay, first one you are finding. So here you can write the first part, number of possible outcomes of getting a green sector. Okay, of getting a green sector. green sector आने की क्या probability हो सकती है? तो green sector देखो कितने हैं बेटा, green total कितने हैं? 3 green sectors. green कितने हैं? 3 है green. So total number of possible outcomes of getting a green sector क्या हो जाएगा? 3 and probability क्या होगी? probability will be equal to number of possible outcomes divide by total number of outcomes. So possible कितने हैं आपके पास green sector के लिए? 3 और total कितने हैं? 5. ठीक है. So total number of outcomes तो क्या होंगे? total sectors जितने भी given है, तो 3 green है, 1 red है और 1 blue है. So total will be 5. अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर. ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी? सो ग्रीन सेक्टर बेटा सिंपल, आपके पास कितने ग्रीन सेक्टर है? 3 ग्रीन सेक्टर है. तो ग्रीन सेक्टर कितने होंगे? 3. सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 3 और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ये तो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 2 क्वेश्चन. सेकंड है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर. ओके, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू. नॉन ब्लू का मतलब ब्लू नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा. नॉन ब्लू का मतलब है कि ब्लू सेक्टर नहीं होने चाहिए, ब्लू के अलावा कुछ भी हो सकता है. तो ब्लू को छोड़ के कौन कौन से बच गए? 3 ग्रीन बच गए एंड 1 रेड. ओके, 3 ग्रीन और 1 रेड. नॉन ब्लू, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर. नॉन ब्लू का मतलब बेटा ब्लू नहीं होने चाहिए. तो ब्लू नहीं होने चाहिए इसका मतलब ब्लू के अलावा कुछ भी हो सकते हैं. तो ब्लू के अलावा कौन कौन से बच गए? 3 तो ग्रीन हो गए और 1 रेड. तो टोटल कितने हो गए? 3 + 1 4. तो पॉसिबल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3 तो ग्रीन. ओके, 3 ग्रीन + 1 रेड. सो टोटल कितने हो गए बेटा? 4 नंबर ऑफ पॉसिबल आउट. और इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आप कंप्लीट लाइन भी लिख सकते हो और शॉर्ट फॉर्म में प्रोबेबिलिटी लिखना होगी तो प्रोबेबिलिटी लिख दो. अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो. हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड हियर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर एंड हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल 4. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये तो वही सेम रहेंगे. कितने हैं टोटल? 5. 3 green sector, 1 red sector and 1 blue sector. So what will be the probability? So probability will be equal to 4/5. Is it clear? So in question number 5 also what you have to do beta, simple. If you have a spinning wheel, आपके पास एक घुमाने वाला पहिया है जिसमें कौन कौन से सेक्टर हैं? 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है. सो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर. ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर. नॉन ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं. तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ग्रीन सेक्टर आने की. तो ग्रीन सेक्टर कितने हैं? टोटल 3 है. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 3 एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल 5 है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/5. और नॉन ब्लू की कैसे निकालोगे? नॉन ब्लू का मतलब है ब्लू नहीं है. तो ब्लू नहीं है तो उसके अलावा जो बच गए वो सारे. ओके, तो 3 ग्रीन बच गए और 1 रेड. सो 3 + 1 टोटल कितने हो गए? 4 पॉसिबल. और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम. सो पॉसिबल तो 4 है और टोटल कितने हैं? 5. सो 4/5 क्या हो जाएगी? सेकेंड प्रोबेबिलिटी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6, we will start question number 6, last question of this exercise. So what is given in question number 6? Question number 6. Find the probabilities of event given in question number 2. Okay, find the probability. Question number 6 beta. Find the probability. Find the probability of the events given in question number 2. Okay, find the probabilities of events given in question number 2. So आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 2 देखना पड़ेगा उसके लिए. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिखो आप सबसे पहले. When a die is thrown, list the
outcomes, list the outcomes of okay. Next question, what is given? Question number 6 beta. It is given, find the probability of the events given in question number 2. So what is question number 2? When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting first a prime number, second part not a prime number, third number greater than 5, a number greater than 5, and fourth part a number not greater than 5, a number not greater than 5. So in this question number 6 question beta. Okay, question number 6, what is given in this question? It is given, find the probability of the events given in question number 2. जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 2 तो हम सोल्व कर चुके, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या पूछा गया था, लिस्ट द आउटकम्स. यहाँ तो आपको आउटकम्स फाइंड आउट करने थे, ठीक है. लेकिन अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो आउटकम्स के लिए तो सिंपल आपने आउटकम्स लिख दिए थे, जो पॉसिबल आउटकम्स थे. लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे, पॉसिबल भी निकालने पड़ेंगे और टोटल नंबर्स भी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी. तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर पार्ट के लिए. तो आपको सबसे पहले क्या करोगे, सोल्यूशन. व्हेन अ डाई इज थ्रोन, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. जब एक डाई को उछालोगे तो डाई पे क्या कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स होते हैं. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6. अब 1 बाय 1 हम क्या निकालेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी. सो फर्स्ट किसकी निकालनी है, अ प्राइम नंबर. सो यू विल राइट हियर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर. ओके, प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर के लिए पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर मींस 1 to 6 में से प्राइम कौन कौन से हैं. तो बेटा 1 to 6 में से प्राइम नंबर मैंने आपको पहले बताया था, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself only. सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself only. तो 1 to 6 मतलब 1 to 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं. So 1 is neither prime nor composite. Okay, I have already told. And 2 is prime because 2 has only 2 factors, 1 and 2. 3 has only 2 factors and 5. Okay, so 2, 3, 5. So total कितने हो गए, 3. Clear? So probability क्या हो जाएगी, probability of getting. Okay, you will write first part, probability of getting a prime number. So prime number आने की probability क्या होगी, number of possible outcomes. So total कितने हैं possible, 3, और total divide by total number of outcomes, so 6. So 3 by 6 आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 by 2. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपने क्या निकाला था बेटा, आउटकम्स निकाले थे ओनली, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या निकालने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी निकालने पड़ेंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और पॉसिबल आउटकम्स भी. सो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर के लिए, 2 3 और 5 तीनों क्या है प्राइम नंबर. सो टोटल कितने हो गए, 3. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, एक डाई के ऊपर कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 to 6. सो टोटल हो गए 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 by 6 मीन्स 1 by 2. क्लियर है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, टोटल तो यही रहेंगे तो इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सेकेंड में क्या करना है आपको, सेकेंड पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, प्रोबेबिलिटी सॉरी फर्स्ट फेवरेबल आउटकम्स निकालोगे. सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ
getting not a prime number, not a prime number. नॉट अ प्राइम नंबर में कौन से नंबर आएंगे जो प्राइम नहीं है? तो प्राइम कौन कौन से थे? 2, 3 और 5 प्राइम थे, तो उसके अलावा कौन कौन से बच गए? 1, 4 एंड 6. तो दीज आर नॉट अ प्राइम नंबर. सो टोटल कितने हो गए? 3 नंबर्स. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? सो यू विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर. सो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो टोटल वही रहेंगे 6 और पॉसिबल कितने हैं टोटल? 1, 4, 6, 3 नंबर्स. सो 3. So 3 by 6. So again, what will be the probability? 1 by 2. Clear? Again, what will be the probability? 3 by 6. So you can cancel out. So it will be 1 by 2. Next, third part, C part. C part. Find the probability of a number greater than 5. Okay, बेटा greater than 5. So number of possible outcomes क्या हो जाएंगे? Number of possible outcomes of greater than 5. Number of a number greater than 5. Greater than 5. Okay. Possible outcomes मतलब greater than 5 कौन से नंबर्स है possible outcomes के लिए? तो greater than 5 बेटा आपके पास टोटल नंबर है 1 to 6. तो 1 to 6 में greater than 5 कौन सा है? 5 से बड़ा. Only 6 है. 1 नंबर क्या है? Only 6. तो कितने हो गए टोटल? Only 1 ही नंबर है. So you will write equal to 1. एंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5. सो इट विल बी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. सो इट विल बी 1 by 6. बेटा यू विल नॉट राइट हियर ओके इक्वल टू 6 एंड यू विल राइट द आंसर 6 upon 6 इज इक्वल टू 1. नहीं, 6 तो नंबर है लेकिन उसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? पॉसिबल आउटकम्स टोटल 1 ही है क्योंकि 5 से बड़ा ओनली 1 ही नंबर है हमारे पास. टोटल 1 to 6 नंबर है और इधर 5 से बड़ा क्या है? ओनली 1 नंबर विच इज दिस वन इज 6 नंबर. ओके 6. तो आपको ओनली 1 ही काउंट करना है. 6 ओनली 1 नंबर है तो 1 यू विल राइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 1 एंड टोटल आर 6. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? 1 by 6. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट फोर्थ पार्ट. What is the probability of getting a number greater than not greater than 5? Okay, of getting a number not, it is written a number, this is number I have written in the short form, a number not greater than 5. Okay, so you will write number of possible outcomes, number of possible outcomes not greater than, number not greater than of getting a number not greater than 5, not greater than 5. not greater than 5 मतलब 5 से बड़ा नहीं है. so 5 से बड़ा क्या है आपके पास? 6 है. so 5 से बड़े नहीं है हमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5. 5 क्यों आएगा? बिकॉज इट इज रिटन अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. 5 बेटा 5 के इक्वल है, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है. क्या है वो? उसके इक्वल है. लेकिन आपको कौन से नंबर फाइंड आउट करने हैं? नॉट ग्रेटर. 5 से बड़े नहीं होने चाहिए, 5 के इक्वल भी हो सकते हैं, 5 से छोटे भी हो सकते हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5 ऑल द नंबर्स विल बी नॉट ग्रेटर देन 5. सो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. सो टोटल 1, 2, 3, 4, 5. टोटल नंबर विल बी 5. एंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? सो प्रोबेबिलिटी will be equal to, so here you will write probability of getting a number not greater than 5. clear? so not greater than 5, what will be the probability? number of possible outcome. so possible कितने हैं आपके पास? 5 and divide by total number of outcomes. so total कितने हैं? 1 to 6. so total are 6. so probability क्या हो जाएगी? 5 upon 6. clear है सभी को? 5 upon 6. So in this question what you have to do beta, in question number second you have
फाउंड व्हाट आर द आउटकम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड किया आपने, क्योंकि आप बोलोगे कि सेम क्वेश्चन तो यहाँ पर लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको अपने आउटकम्स निकाले थे और यहाँ पर क्या निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको फेवरेबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स भी निकालने पड़ेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी। ठीक है, तो पॉसिबल और टोटल दोनों निकाल के प्रोबेबिलिटी निकाल दो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर, इसके बाद डिवाइड कर दो, सो आपको ये क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप पहले ही निकाल चुके हो। अपने आउटकम्स में प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नोट अ प्राइम नंबर कौन से होंगे, नंबर ग्रेटर देन 5 कौन से हैं और नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, so like that you have to complete your exercise, this one exercise 5.3, and with this exercise we have completed our chapter number 5 also. So you have to solve all the question in your fair notebook, and if you have any doubt please join the Zoom class for the doubt session. Clear all of you? Thank you so much.